Hello students, let us start with next chapter, polynomials. As the name itself suggests, poly means many, nomial means terms. So collectively we call it as polynomials. We do have polynomial having one term, which we call it as monomial. A polynomial having one term. So let us take one example. 3x square, it is a monomial. Mono means 1. Okay, suppose we have example 3x square minus 5. How many terms are there? 2. So we call it as binomial. उसी प्रकार try, we have try also. We do have multinomial, but we will be focusing only on monomial, binomial now, and I will give you one example of trinomial also. So let us 3x square plus 2 minus 2x minus 1. So this is example of trinomial. So 3, trinomial means 3. As the name suggests, it means 3. So this is also one type of polynomial. Polynomials can be categorized depending on the number of terms. Number of terms. Suppose we have one term, we call it as one term. 2 terms, 3 terms. And if we have many terms, then we call it as polynomial. Monomial, binomial, trinomial, these are all polynomials. Another type, I must say, we can call it as the first kind of polynomial. We do have second also, but that is based on not the term, but that is based on degree of a polynomial. So now the question arises, what is the meaning of degree? Degree is highest power of the polynomial. Let us take one example. Suppose we have 8x square. This is just example that I am taking for you. 8x square minus 5x plus 6. This is an example of trinomial. Now, in this case, and this is a polynomial of one variable. How many variable you see here? Here you can see only one variable. Suppose I ask you one more, or I write one more example of the type 5x square plus 2y minus 7. So students, here you can see how many variables? 2 variables. One is x and second is y. But now in this case, in our first example here, these 2 numeric value in front of the variable x square and x are called coefficients. This is the constant term. As I told you, what are these x square and x? Both they are having one variable. They are following one variable, that is x. It is called variable. And what are these minus and plus? Minus and plus are the operators. So this is what you have to keep in mind. This is
an example of polynomial of variable 1. Okay. Now the next part is, so if I ask you to find the degree here, so naturally if you see the degree, as I told you, it is the highest power of the variable. So variable here is x, so we are going to find the highest power of x. Here x is raised to the power 2, here it is raised to the power 1. So naturally the degree in this case will be 2. You will definitely get one question either to find the coefficient. Coefficient can be asked, they can ask you find the coefficient of x square. These are the questions that you may get. Of x square, either x square, or maybe you may be asked to find the coefficient of x. Okay, so accordingly the coefficient of x square, can you guess? The coefficient of x square in this case will be 8, and what is coefficient of x? It is going to be -5. So after this we can try some questions and try to solve them so that we can get the clear concept of this basic, the introduction part of polynomials. Okay, we are going to discuss one question. यस अभी एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, बट अभी तक क्या समझ में आया आपको? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द गिवन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपसे पूछा जाएगा उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कैसे निकालना है. एक क्वेश्चन ये आ सकता है 1 मार्क में. 1 मार्क आपका डिग्री निकालने के लिए आ सकता है. एक क्वेश्चन जो बहुत ही रूटीन में पूछा जाता है कि आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल. मतलब आपको क्वेश्चन देखकर बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. ओके, तो एक क्वेश्चन आप उसके लिए लिखते हैं. आई विल राइट ऑल द पार्ट्स. तो ये आपको क्वेश्चन का जवाब देना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. क्वेश्चन क्या है? 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11. बताओ बच्चों ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल द टाइम आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए. सेकंड आंसर तैयार रखिए अपना. 1 अपॉन √5 x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1. थर्ड पार्ट इज, दिस क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स इन योर एग्जाम, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं. y प्लस 3 अपॉन y. फोर्थ पार्ट x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9. Okay, let us start with our answers. The first one is a polynomial. Yes, it is a polynomial. ये पॉलिनोमियल है. क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपका जवाब आएगा नहीं. Why? Your answer is no. और सवाल फिर यहां उठता है भी क्यों, ऐसा क्यों? कोई ना कोई तो इसके पीछे लॉजिक होगा. So that logic
which works behind this particular part will be, it is because the exponent of the variable x, x का जो एक्सपोनेंट है, जो कि आपका x रेज टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है, ये जो है वो होल नंबर नहीं है, रादर वो फ्रैक्शन है. सो एक्सपोनेंट इज नॉट द होल नंबर. एक्सपोनेंट इज नॉट द होल नंबर. व्हाट अबाउट दिस? ये बताइए आपको पॉलिनोमियल है या नहीं. ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे, सो दिस विल बिकम 3 रेज टू द पावर -1. सो व्हाट इज द वेरिएबल इन दिस केस? वेरिएबल इसमें y है. किसी भी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. अगर उसकी रेज टू द पावर नेगेटिव आ जाती है, माइनस, वेन एवर यू हैव ए पॉलिनोमियल विद वेरिएबल माइनस पावर, वो पॉलिनोमियल नहीं है. नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, व्हाट अबाउट दिस x² + 3xy - 9? देखिए, पॉलिनोमियल अगर आपसे पूछेंगे इज इट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, क्योंकि आपको क्वेश्चन यही पूछा गया, इज इट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. अगर आपसे वन वेरिएबल पूछते हैं तो ये नहीं है. रीजन बीइंग कि यहाँ x और y दो वेरिएबल आ गए, तो ये आप कहेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल. और ऐसा क्यों? बिकॉज 2 वेरिएबल्स x and y, and here is it a polynomial or not with वेरिएबल 1. ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा. सो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करें, जस्ट एक्स्ट्रा. दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर एनसीईआरटी बुक. ये बुक में है. सो एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, लेट अस डू दैट. इज 6 √x plus x raised to the power 3/2, x raised to the power 3/2 whole divided by √x, a polynomial. ये आपको बताना है. ये आपको मतलब बताना है. तो अभी इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया उसमें आपको बताया गया कि अगर वेरिएबल की रेज टू द पावर फ्रैक्शन टर्म आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. तो देखने में तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, लेट अस ब्रिंग इट टू द लोएस्ट फॉर्म. हम इसको सबसे लोएस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं और लोएस्ट फॉर्म में लाकर फिर फाइनल कंक्लूजन पे जाएंगे कभी भी कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो लोएस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे? 6 √x upon √x plus x raised to the power 3/2. How can I write this? As you know, आपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है कि आप √x का भी लिखा है तो आप x raised to the power 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा मीन्स यहाँ पर क्या लिखा होता है 2, और यहाँ कुछ नहीं लिखा मीन्स 1. तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x.
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो एक्स रेज टू द पावर 1/2 आ जाएगा। मान लो आपसे क्यूब रूट ऑफ एक्स, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू द पावर 1/3। ये आपने बेसिक चीज़ें की हुई हैं जूनियर क्लासेस में। सो आई कैन राइट दिस एज एक्स रेज टू द पावर 1/2। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सो वी हैव 6 प्लस, अगर बेस सेम होती हैं और आपके पास डिवाइड हो तो आपको मालूम है पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, पावर माइनस होती है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1/2, सो 6 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2/2, सो वी कैन कैंसिल इट आउट। सो वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस 6 कह लीजिए या फिर 6 प्लस एक्स। अब आप बताएं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। तो नाउ योर आंसर विल बी यस, ये पॉलिनोमियल है। और पहले कैसा लग रहा था देखने में, कन्फ्यूजन, अंडर रूट आ गया, 3/2 आ गया, और जो हमारी एक थ्योरेटिकल जो थ्योरी कहती है कि जब भी फ्रैक्शन, तो कभी भी थ्योरी को आपने प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करना है और फिर अपना आंसर अटेम्प्ट करना है, येस और नो। प्लीज सब्सक्राइब, like and share this channel. Thank you.